a long time back with another video. So first of all, I would like to thank all of you for such a huge response on the video of how I scored 355. The video has almost reached 250,000 views. Yeah, and the video was flooded with the comments for physics and chemistry tip. So the wait is finally over. So same like biology, I have a pro tip for physics and chemistry as well. So you can easily revise entire physics and entire chemistry in a single day. It sounds amazing, right? Let's jump into the video. Yeah, so see, ये प्रॉब्लम आई नो सबको होती होगी कि आता सब कुछ है बट वी नीड द टाइम फॉर रिवाइजिंग. अभी मेरे साथ भी कैसा होता था यू नो कि जब हमने फर्स्ट टाइम किसी चीज को भी पढ़ा है देन वी फील लाइक अरे वाह हमें सब कुछ आ गया, वी नो एवरीथिंग, नाउ वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन एंड व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन दैट टाइम हमें आंसर्स आ भी जाते हैं. But to retain it, we need to revise. And to revise such a huge chapters like ray optics and electrodynamics or magnetic fields, it needs time, right? और बार बार रिवाइज करना it needs a lot of time. और पता है क्या होता था, मतलब मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम था कि जब भी मैं कोई टेस्ट देने जा रही हूँ आई नीड कि मैंने उससे पहले सब कुछ रिवाइज किया होगा ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता. And for mock test for the entire syllabus, you can't revise everything in such a few days. Then I followed the habit of making short notes. Now, short notes, what does short notes mean? So, does it mean writing the notes in the small font? So yes, it means the same. We'll write the notes or we'll make the short notes in a certain way, which will be very useful for us. So let us see how to make short notes. First of all, take a paper and make sure you divide the paper into 3 parts. Take a blank A4 size paper and divide it into 3 parts by drawing 2 lines vertically. Okay, now we have divided the paper into 3 parts. So what we will do, पहले तो आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, राइट? अब जब आप दूसरी बार चैप्टर पढ़ोगे, to make sure that you place the paper on the side. और जब भी कोई फॉर्मूला आए, make sure you write it there. And like this, revise the entire chapter. Okay. और आपको वो भी चीजें लिखनी है विच आर वेरी एसेंशियल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक द थ्योरी पॉइंट्स. सो राइट ऑल ऑफ दैट इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट इज जब हम मॉड्यूल से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे. सो जब भी हम मॉड्यूल से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, वेन एवर यू गेट स्टक इन सम क्वेश्चन और यू फाइंड समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट इन अ क्वेश्चन, मेक श्योर यू राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट क्वेश्चन इटसेल्फ इन दोज नोट्स. नाउ अब हम कोई एक्स्ट्रा बुक रेफर कर रहे हैं like DC Pandey for physics, तो तब भी हम same thing करेंगे. Okay, whenever you get something extra, make sure you write it down. So what we are doing actually, we are preparing all these days for the last week of NEET exam. Okay, तो मतलब हम इतने दिनों से सब कुछ कलेक्ट कर रहे हैं जिससे हमें लास्ट डे पे 1000 of pages नहीं, कुछ 100 to 150 पेजेस बनेंगे ऐसे शॉर्ट नोट्स करते, बिकॉज एक चैप्टर आप एक पेपर में both the sides you can easily cover. Okay, write with the short font. Okay, and you can see in there ki how small you have to write and how you have to make the short notes. Okay, तो whenever कुछ भी नया, कभी टीचर ने कुछ बताया, कभी whenever you give mock test कुछ नया मिला, make sure you मतलब जब भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ने बैठ रहे हो या कुछ सॉल्व कर रहे हो, habit of keeping the short notes on your side. So like now for chemistry, for organic chemistry or for inorganic as well, जब भी हम inorganic में से short notes अच्छे खासे बनेंगे because so much to remember and everything has the capacity to come in the NEET exam. तो हमको almost हम लोग काफ़ी कुछ लिखेंगे but okay, that is okay, क्योंकि अगर हम अपने हाथ से लिख रहे हैं ना तो हम उसको बहुत अच्छे से रिटेन कर पाते हैं. तो ऐसे आप समझ रहे हैं एवरीथिंग जो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड कर रहे हो, मेक श्योर दैट ऐसा नहीं है पूरा सेंटेंस लिखने बैठ गए. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन द स्मॉल फॉन्ट एंड देन मतलब ऐसा इंडिकेशन. और अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि ये तो पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख सकते हो, बट फिर भी इफ यू फील कि इतना सारा लिखना है देन एटलीस्ट राइट द पेज नंबर सो दैट आपको ये होगा बस केवल इतना रेफर करना है. अदरवाइज क्या होता है ना,
एक वीक पहले हम लोग वो सब कुछ देखते हैं, ओके पेपर्स जो हमने सॉल्व किए हैं, मॉक टेस्ट और सारे मॉड्यूल्स हम सब उठा के देखते हैं कि जो जिन जिन क्वेश्चंस पे हम स्टक हुए थे तो हम एक बार देख लेते हैं, बट दैट इज सो हैफज़ार्ड, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके। और फिर जब हमें इतनी सारी बुक्स और नोट्स दिखते हैं ना, देन वी मतलब इतना टेंशन आता है कि ओ माय गॉड इतना रिवाइज करना है, बट व्हेन यू हैव सच अ बंच ऑफ पेपर एंड एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी, देन यू आर सो फ्री फ्रॉम योर माइंड एज वेल कि ओके इतना रिवाइज करना है। एंड सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द हैबिट ऑफ रिवाइजिंग द शॉर्ट नोट्स वीकली, मतलब जितने भी आपने बनाए हैं उस वीक में, मेक श्योर यू रिवाइज इट ऑन द वीकेंड। और फिर जब आपका वीक और 2 वीक्स बिफोर फ्रॉम द नीट एग्जाम, तो आप क्या करो, हर दिन रिवाइज ऑल द शॉर्ट नोट्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपने पहले से इतनी बार रिवाइज कर रखे ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और ऐसा लगेगा आप रोजाना पूरी केमिस्ट्री और पूरा फिजिक्स रिवाइज करें एंड गिव 1 or 2 मॉक टेस्ट डेली 2 weeks or 3 weeks before the NEET exam. So that way the life will be sorted, मतलब it is the such a smart way to study and to recollect everything। और आपको नीट के दिन टेंशन भी नहीं लगेगा कि अरे ये टॉपिक तो मैंने एक वीक पहले रिवाइज किया था और उसके बाद रिवाइज नहीं किया, मुझे उसका याद होगा या नहीं, बिकॉज आप 2 दिन पहले ही उसके शॉर्ट नोट से 1 दिन पहले भी आप आराम से सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। बायोलॉजी, आई टोल्ड यू द ट्रिक ऑफ ऑडियो बुक्स, and for physics and chemistry, make the habit of short notes. I have all the short notes of physics and chemistry. If you want, then I can make an Instagram page and I can upload all the short notes there. But see, what I feel is कि आप अपने हाथ से बनाओगे, so it will be very easy for you to remember them and to revise them. So easily you can revise everything every day. So this is the best plan. And see, mock test में भी आप हमारे कैसे होते हैं, हर 3-4 डेज बाद एंड टाइम पे फुल सिलेबस टेस्ट, तो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, या फिर बार बार अच्छा अभी ये रिवाइज करता हूँ बाद में ये चैप्टर रिवाइज करूँगा। एवरी टाइम यू कैन रिवाइज एवरीथिंग, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, ओके। बिकॉज कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप हमेशा भूल जाओगे, आपको हर बार देखने की जरूरत पड़ती है, और फिर कभी अगर आप देख कर नहीं गए ना, तो उसी वक्त वो गलत हो जाता है और वो क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर शॉर्ट नोट्स, इफ देयर शॉर्ट नोट्स इन योर हैंड, देन so if you really want that my short notes, then make sure you put a comment, because that only encourages me. So I'll surely put short notes, and see, I'm thinking about audiobooks also, will see something to it very soon. I'll try to upload all the audiobooks super soon. So thank you for watching this video, and if you like the video, do consider liking and subscribing the channel, and share the video with all the NEET aspirants. See, it is a video of great help. Means अगर आप इस वीडियो को रिलीजियसली फॉलो करो ना, then it will be very useful for you. And see, it is not like हमें स्टार्टिंग से शॉर्ट नोट्स बनाना है. I also made the short notes of 11th and 12th both in the mid of 12th. Okay, so it is never late to make short notes, because जब भी आप रिवाइज करने बैठे हो, just take a paper, divide it into 3 parts and start making short notes. Okay, so the video is of great help if you follow it religiously. So if you like the video and if you're liking the content and the tips I'm sharing, do consider subscribing my channel. And till the next video, ta-da!